Hello student, this is exercise 3.5 class 10 NCERT. If you see this exercise, I am using cross multiplication method. This is the last method. In the previous videos we have discussed all methods. Now what we will do here, first of all in question number 1, question number 1 is saying that which of the following pairs of linear equations has unique solutions, no solutions or infinitely many solutions, right? So you know very well, I am repeating again, a1 upon a2 and b1 upon b2 and c1 upon c2, you know what is this. a1 and a2 are the coefficient of x, b1 and b2 are the coefficient of y, and c1 and c2 are the constants. So constant you can see here, right? So we will find the ratio of all these things. If we are getting a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, we will say that it is the condition of no solution. Now if suppose a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, sorry, it is for unique solution and it is for no solution, right? If all three are equal, then it is for infinitely many solutions. This we have done in the previous exercises also. So in this case also we have to check and then we have to find the solution. If no solution is possible, then why we will do more efforts there. So first of all we will check whether it will give you a solution or not. So again a1 upon a2, what is 1 upon 3, b1 upon b2, it is minus 3 upon minus 9, and c1 upon c2 will be minus 3 upon minus 2. You can see here. So it is, we are getting 1 upon 3, it is already in simplified form, no change. It is 1 upon 3 we are getting, but it is not equal to. So what we are seeing here, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but it is not equal to c1 upon c2. So what you will say here, it means no solution. So there is no need to find a solution for these pairs of equations. Now I am coming to the next one. What is next one? X plus y. Because why I am doing this exercise, because along with the examples or with exercise I can tell you the method also, what exactly this method is, rather than I will take the other examples, right? So this is another example here. So what you will do here, again you will check whether it is giving you a solution or not. Again you can see 1 upon 3, it is 1 upon 2, because coefficient of y is 1 and coefficient of x is 1, it is 5 upon 8. You can see first one is not equal, so there is no need to check for this. This one is saying that it is having unique solution, right? It means the solution is possible here. Now we can proceed for this particular sum. So I am coming to the cross multiplication method. Now what the cross multiplication method say? There are so many approaches. I will tell you one approach. I think that will be more comfortable for you, because in schools you will see the difference there in this particular approach. What I am telling you here. See, suppose first of all you will see your linear equation. If linear equation constant part, if you are keeping here on the right hand side, that is fine, कोई problem नहीं है. But if you are keeping this side, then there is a one change, right? So better is if you keep the constant here. I am telling you the method for that type of equation where the constant here, right? So you can see this is what, a1, a2, b1, b2, c1, c2. This one you have to remember. So x upon y upon minus 1 upon, this is fixed, this will not change. This is fixed, this will not change in any condition, right? Now what you will put below x? Below x you will put the coefficient which are not related to x. So you can see x के जो coefficient है 1 और 3 वो ही नहीं लिखे जाएंगे, बाकी सब लिखा जाएगा, राइट? तो y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 2 एंड
ऑर्डर ऐसे ही चलेगा, ध्यान रखना ये साइकिल। अब y में आ जाते हैं, y का कोफिशिएंट क्या है 1 और 2, यही नहीं लिखे जाएंगे बाकी सब। इसके बाद क्या आता है 5 और 8 आता है, या आप ऐसे समझ सकते हो जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा। उसके बाद क्या रह जाता है यहाँ पर 1 3, ये दो पेयर लेंगे। अब कांस्टेंट में क्या लेंगे 1 और 3, मैंने आपको बताया ये बिल्कुल यहाँ उतार दो और ये 1। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा मेथड है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या पकड़ना है, या तो आप ये पहले मल्टीप्लाई कर लो देन माइनस ये, सो x अपॉन पहले 2 और 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 10 माइनस 8 इंटू 1 8, y अपॉन 8 को 1 से करो 8 एंड दिस विल बी 15, करेक्ट है। दिस इज -1, ये हो गया 3, ये हो गया -2। तो इस तरह से हमारा ये मैपिंग होगी। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब ये देखो ये तीनों इक्वल है राइट, लेकिन अगर मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। रीजन, क्योंकि ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, तो क्या फायदा होना। हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ इक्वल करेंगे और इसको इसके साथ इक्वल करेंगे। क्यों करेंगे वो देखो जरा, x अपॉन 10 माइनस 8 किया और आपने -1 के साथ कर दिया, राइट है। अब क्या फायदा होने वाला है देखो जरा, ये हो गया 2 -1, नीचे क्या आ गया 1, 2 को इधर ले जाओ -2 अपॉन 1, देखो तुरंत वैल्यू आ गई आपकी x की, राइट है। अब सेकंड पे आते हैं, ये आ गया। अब आपको पता है y का कितना, ये -7, ये -1 अपॉन 1, तो y कितना 7। अब ये आपकी दोनों वैल्यू आ गई कि x की वैल्यू -2 और y 7। बड़ा सिंपल सा कुछ, क्लियर है स्टोरी। एक बार वेरीफाई भी करके देख सकते हो, अगर मैं x की जगह -2 पुट कर देता हूँ और y की जगह 7 पुट करता हूँ, मुझे क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। यहाँ पर ही पुट कर लो, 3 की जगह मैंने क्या पुट किया -2, 2 की जगह 7, कितना आया -6, और यहाँ कितना आया था 8, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन आपको बड़ा ये याद रखना कि आप क्या करना चाह रहे हो। अगर बुक में देखते हो तो यहाँ पर +1 भी है, तो +1 के लिए क्या करेंगे, वो इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं कि ये इधर ले आओ और ये इधर कर दो। तो अगर वो चेन को बना के रखना है तो बेटर है आप -1 याद कर लो यहाँ पर रेदर देन +1। और अगर आपको यहाँ +1 लिखना है तो फिर 1/2 यहाँ आएगा, 1/3 यहाँ आएगा। लास्ट मोमेंट पे ध्यान रखो कि 1/3 जो यहाँ आया वो सेकंड पोजीशन लिखना पड़ेगा आपको। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक दो सम सोल्व करते हैं और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। इससे जो नेक्स्ट सम है उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देखने को मिल रहे हैं, एक बार चेक करके देखेंगे। राइट है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही इसमें परफेक्शन बनता चला जाएगा, क्योंकि मेथड इतने सारे हैं कि कंफ्यूजन होने के चांसेस बन जाते हैं। कौन सा यूज करें, अब जैसे ये है, इस वाले अगर इस कॉन्सेप्ट को उठाएं, इसमें फिर अगेन अगर मैं 3/6 करता हूँ, देखो जरा 5/10 किया, पता नहीं इक्वल आएगा नहीं, अभी मैं इक्वल क्यों पुट करूँ, तो चेक करने में पता लगेगा 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/, देखो तीनों इक्वल हो गए। तो क्या कंडीशन हो गई, आप बोल दोगे तुरंत कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कैटेगरी में चला गया, राइट है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस तो मिल गए अपन को। अब क्या किया जाए, अब हमारा ये बिल्कुल देखो कांस्टेंट पार्ट मेरा इक्वल टू के इधर ही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने तो उसी को ही फॉर्मूला टाइप बना दिया। अब ये देखो मैंने ये किया, फिर वही स्टेप है। x के नीचे क्या करूँगा मैं, x के नीचे कौन से कोफिशिएंट आएंगे, x के नीचे सिर्फ वो वाले कोफिशिएंट्स आएंगे जो x के नहीं है। तो x के नहीं है 3 और 6 तो हमें लेना ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा -5 आएगा, -10 आएगा, 20 और 40 ये दोनों आ गए। फिर मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल यहाँ लिख दो, फिर बचा होगा कौन सा, क्योंकि y के नीचे y वाला तो ले ही नहीं सकते, तो 3 और 6 आ गया। अब यहाँ पर 3 6 ले लो और बचा क्या, क्योंकि -1 का मतलब कांस्टेंट वाला तो ले ही नहीं सकते, -5 और -10 ले लो, राइट है। ये आ गया, बड़ा इजी हो गया ऐसे। अब कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा। जब ये काम होने के बाद तो आप ये सोचो कि सिर्फ एक स्टेप बाकी आ जाता है। इसको क्या करें, मैं पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना पसंद करता हूँ, चलो जी ऐसे कर देते हैं।
कितना आ गया -200, एक माइनस हम लगाते हैं, एक माइनस इसका आ रहा है, देखो 40, 100 हो गया, 200 माइनस एक माइनस अपना, एक माइनस इसका, ठीक है। y ये कितना हो गया 120, अरे ये भी 120, -1, ये कितना देखो जरा -30 और ये -30, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखने पे देखना एक क्या चीज नजर आ रही है, अरे ये तो 0 आ गया और ये भी 0, क्या हो रहा है ये कि x की वैल्यू क्या आ गई अनडिफाइंड, मतलब x क्या दे रहा है, x की वैल्यू अगर देखते हैं तो ये -10, 1/0, मतलब क्या, किस तरह के कितने सॉल्यूशंस आएंगे। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी ध्यान रखें, मतलब क्या है ये कि x की वैल्यू बहुत सारी है यहाँ, x की वैल्यू अनलिमिटेड होंगी तभी तो वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये तो अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है, तो x की वैल्यू कितनी इनफाइनाइट हो सकती है। यहाँ 1 करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, x की कितनी वैल्यू पुट करो इनफाइनाइट आएगा, y की कितनी वैल्यू पुट करो इनफाइनाइट आएगा। इससे क्या पता लगा कि x जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे रहा है। यहाँ पर आ रहा है, बात समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर समझने वाली है। इस पार्ट में यही एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि जब आप ये करते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस किस तरह से दिखाएंगे आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट है। अब यहाँ पर भी मतलब समझने वाली बात ही है और कुछ नहीं है। कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भाई x/0 और ये इनफाइनाइट है। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि आप 0 को इधर पहुँचाओ, ठीक है पहुँचा दिया, बेनिफिट क्या हो रहा है, आप सिर्फ ये सोचो कि x की कौन कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पुट करें और अनडिफाइंड आता है। तो आप बोलो कि x की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, 1 भी पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ, 3 पुट कर सकता हूँ, कुछ भी, सो मैनी माइनस पुट कर सकता हूँ, तो भी अनडिफाइंड ही देगा, क्योंकि ये 0 से डिवाइड होने पे सब कुछ देगा। तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होगी, अनलिमिटेड होगी, तो ये एक रीजन है, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक वो आप कर सकते हो, उसमें -7 और -15 इधर दिया हुआ है, आप उधर ले जाओ, ठीक है, आप जो है दूसरी तरफ ले जाओ और उस तरह से आप उसको अटेम्प्ट कर लो। इसके बाद आते हैं सेकंड वाले पर, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखिए बच्चे ये इसमें अगर आप देखें तो हमें कुछ वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ ये कह रहा है इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, बोल दिया उसने, और इसके अंदर बोल दिया है कि नो सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, तो उसका वो ये पूछना चाहता है जो ए और बी हमने उसने वेरिएबल के तौर पर डाल दिए हैं, इनकी वैल्यू निकालो, जो एक्चुअली में कांस्टेंट है, इसमें के का वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा बात है, पहले आपको वो कंडीशन पता करनी है जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देती है। व्हाट इज दैट कंडीशन, कंडीशन क्या थी वो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज c1/c2, तीनों रेशियोज इक्वल होने चाहिए, राइट, x का कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स, ये कंडीशन था। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है a-b। अब ध्यान रखना a में कंफ्यूज मत होना, ये a1 a2 कोफिशिएंट्स की बात होगी, यहाँ पर a-b क्वेश्चन ने दी है। अब यहाँ पर ये हमें पता है इक्वल होगा, b1 कितना है, ये रहा 3, y का कोफिशिएंट, इधर y का कोफिशिएंट क्या है a+b, इधर क्या है कांस्टेंट 7, इधर पूरा कांस्टेंट ये है, देख रहे हो आप, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, अब इसमें देखिए दो चीजें आती हैं, आप एक बार ये वाला उठा लो पेयर, क्या हो जाएगा देखना जरा, 2/a+b इज इक्वल टू 3/a+b, ले लिया जी। इसके बाद आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आप ये हो गया 3a+3b। अब नाउ आपको कुछ नहीं है, आप a और b को एक तरफ ले जाओ, a को एक तरफ ले जाओ, b को दूसरी तरफ ले जाओ, ज़्यादा बेटर है। b को कहीं पर भी ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि माइनस तो आप बचा नहीं सकते एक तरफ। तो अगर आप देखते हो माइनस है और ये आ जाता है प्लस b, तो ये एक रिलेशन मिल गया कि -a और b आ गया, करेक्ट है। अब यहाँ पर आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। अभी तक हमारे पास a और b की वैल्यू नहीं है, बट हाँ a और b में एक रिलेशन मिल गया, वो एक बहुत अच्छी बात हो गई है। अब क्या कर सकते हैं, अब हम दो को पकड़ लें, कोई भी दो को पकड़ लो, अब उसके लिए कोई ऐसा मैंडेटरी रूल नहीं है, रूल तो पहले भी नहीं था, बट ये था कि पहले इजी हो रहा था तो हमने उसके अकॉर्डिंग कर दिया। अब इजी होने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये लो या ये लो बात एक ही है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9a 3b माइनस 6 7a प्लस 7b। अब इसको इधर लिया हो, a को 2a आ गया, ठीक है, और b को भी लेकर ही आ जाओ, -4b आ गया, ठीक है, -6 आ गया, 0 आ गया। अब ज़्यादा बेटर ये है कि b की वैल्यू -a पुट कर दो, यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। -a पुट करते ही आपके पास a की फॉर्म में सब कुछ आ गया, ये हो गया 4a, ठीक है, और यहाँ आ गया ये 6a, और ये 6 उधर पहुँचा दो, a की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू 1 आते ही b की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि a 1 यहाँ पुट करो, b इज -1, तो हमारे पास a और b निकल आया। तो इस तरह से करते हैं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। b इज इक्वल टू -a, सो b इज -1। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हमारे हाथ में आ गया। नाउ अब क्या, अब जो नेक्स्ट वाला है वो नो सॉल्यूशन की कैटेगरी है। नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं, ये हटा देते हैं, राइट, प्लीज नोट डाउन। अच्छा, नो सॉल्यूशन की कैटेगरी आपको पता है, उसकी फिर कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। कंडीशन क्या है नो सॉल्यूशन का? नो सॉल्यूशन का कंडीशन कहता है a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 आर इक्वल, बट c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल। करेक्ट है, ये तो चीज आ गई इसकी। अब जब ये इक्वल नहीं है तो क्या करें, तो क्या करना चाहिए? तो सिंपल सी बात ये आएगी हमारी निकल कर कि a1 की जगह हम रखते हैं पहले वैल्यू, फिर उसके बाद बात करेंगे। a1 है 3, ये ध्यान रखें x का कोफिशिएंट ही रखना है बार बार, मैं बार बार इसको बार बार आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि y का कोफिशिएंट ही रखना है, ठीक है, ये रखा गया। c1 में 1 रखेंगे एंड 2 के प्लस 1 रखेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करें, अगर आप देखो इक्वेलिटी, अगर ये नॉट इक्वेलिटी है तो ये वैल्यू क्या देगा हमें? कुछ नहीं देगा, वो तो नॉट इक्वेलिटी वाली वैल्यू देगा। हमें चाहिए k की वैल्यू, तो हम क्या करें, इसको पकड़ लेते हैं 3 अपॉन 2k माइनस 1 एंड 1 अपॉन k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आपके हाथ में आ गया, -1 प्लस 3, सो k की वैल्यू कितनी आ गई? बस यही आंसर क्लोज हो जाता है। क्योंकि हमें जो आपकी नॉट इक्वालिटी है उसका क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है, वो तो वैसे ही दे दिया है, राइट है। तो यहाँ पर ये था। अगर आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाले में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की ही डिमांड की जा रही है, तो एक बार कर लेते हैं, एक और बार रिवीजन हो जाएगा आप सबका। सो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको पता है कांस्टेंट उधर ही है, तो मैंने आपको बताया था x करो, y करो, और साथ में कौन सा -1 कर दो। तो x के नीचे कौन क्या आएगा, x के नीचे x के कोफिशिएंट को छोड़कर बाकी सब आएगा। तो कौन कौन से हैं वो, एक तो y के कोफिशिएंट आ गए और एक कांस्टेंट आ गया। y के नीचे y वाले नहीं आएंगे, कौन सा आएगा, पहले 9 4 आता है, मैंने आपको बताया था यही यहाँ आता है, उसके बाद 8 3 आता है, उसके बाद यहाँ पर 8 3 ले लो, 8 3 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 2। ये वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये कर लिया तो समझ लो आधा क्वेश्चन तो यही हो गया। अब क्या, इसकी मल्टीप्लाई करो पहले, तो x अपॉन कितना हो जाता है 18 एंड -20, इधर y कितना 32 -27 -1 16 -15, राइट। अब यहाँ पर x अपॉन क्या -2, y अपॉन क्या 5 एंड -1 अपॉन 1। अब क्या करना था, मैंने आपको बताया था इसको इसके साथ करो एंड इसको इसके साथ, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स को आपस में इक्वल नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो x का वैल्यू कितना दे दिया इसने, देखो 2 दे दिया, माइनस माइनस प्लस एंड 2, और y का वैल्यू कितना दे दिया, देखो जरा -1, और y का वैल्यू कितना -5 दे दिया। आंसर आ गया आपके हाथ में। वेरीफाई करना हो वेरीफाई कर लो, 3x है प्लस 2y, सेकेंड इक्वेशन मैंने पकड़ ली है, 3x की वैल्यू 2, 2 इंटू -5 4 आ गया मुझे, 6 -10 और ये 4। कुछ तो गड़बड़ है, देखो चेक करो कहाँ मिस्टेक हुआ। देखो इसी से ही मिस्टेक्स पता लगती हैं कि आपने मिस्टेक कहाँ कर दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन के आंसर्स में गड़बड़ हुआ है कहीं, तो वो भी चेक किया जा सकता है। दिस इज ओके, दिस वन इज द मिस्टेक, यू कैन सी 5 3 15 -16, क्या आना चाहिए था, -1 आना चाहिए था। अब जब -1 ही आना चाहिए था, ये सॉरी +1 हो जाता तो ये -2 देगा, और ये +1 है तो ये क्या दे देगा अपने
+5। तो ये देखो वेरिफिकेशन से बड़ा बेनिफिट है कि आप एक तो आप चेक कर सकते हो मिस्टेक कहाँ कर दी और आपका आंसर आपके पास हो जाता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हो सारी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। वर्ड प्रॉब्लम में अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हो तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे इक्वेशन बनेंगे तो मेथड तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, चाहे वो आप सब्स्टिट्यूशन करो या एलिमिनेशन करो, जो भी है आप करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो पहला देखते हैं वर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इजी बिकॉज दिस टाइप ऑफ सम वी हैव डन इन द प्रीवियस एक्सरसाइज आल्सो। वी हैव डन लाइब्रेरी सम, राइट, वी हैव डन टैक्सी वाला सम। So there are two type of charges, one is a fixed and one is we are having on the basis of days। तो यहाँ पर भी वही है, एक हॉस्टल ले लिया है in place of library and taxi, and hostel charges is fixed monthly and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। When a student A takes food for 20 days he has to pay 1000 rupees as a hostel charge। तो हम क्या करेंगे, let the fixed hostel charges, right है, fixed hostel charges be rupees X and charge of food, because per day, because food charges is according to per day that person has to pay। So suppose it is rupees Y, so hostel charges will be fixed whether he will leave or not there। तो केस अगर 1 पकड़ते हैं, केस नंबर 1 इज सेइंग लाइक स्टूडेंट टेक्स 20 days फूड बिकॉज चार्जेस आर फिक्स, सो x रुपीज तो उसको पे करना ही करना है होटल हॉस्टल का, उसका कोई रिड्यूस होने वाला चक्कर नहीं, चाहे वो 20 दिन रहे 10 दिन रहे, 1 मंथ का चार्ज फिक्स है। लेकिन अगर वो 20 दिन रहा है तो उसको 20 इंटू वाई रुपीज पे करना पड़ेगा खाने का। तो उसने जब देखा तो 1000 रुपीज उसका आया। अब आए थे केस 2 पर। अब केस 2 क्या कहता है कि अगर 26 डेज के लिए करना पड़े उसको, तो ऑब्वियस सी बात है, अब मुझे लगता है कोई इसमें प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें कौन सा मेथड ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए? मुझे लगता है अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। कैसे आ जाएगा? आप क्या करोगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, जो माइनस होती है इक्वेशन उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 20y 1000 और x + 26y और ये 1180। जैसे ही आप करोगे माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये कितना दे गया -6y। अभी ये माइनस काउंट करने वाला है इसके साथ, ये कितना दे गया 180 दे गया, करेक्ट है। अब ये माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, y कितना आ गया 30, तो y 30 आ गया, तो ये 30 रुपीज हो गया। अब ये 30 रुपीज हो गए, यहाँ पुट कर दो, तो 30 इंटू 20 600 उधर माइनस चला गया 400, मतलब ये 400, मतलब 400 रुपीज चार्जेस थे हॉस्टल के और 30 रुपीज पर डे का था खाने का, राइट। तो इस तरह से देखो मैंने हमारा क्वेश्चन ही सोल्व कर दिया, इसमें कुछ है नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। फिर ये कहता है नेक्स्ट वाला, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। अब फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन आपको पता है x/y होता है, राइट। अब x/y पहले तो आपको x/y सपोज करना पड़ेगा। ये वाला सम हमने बिल्कुल किया है पहले। लेट द फ्रैक्शन बी x/y, राइट। लेट fraction be x/y. What is x and y here? X is numerator and y is denominator. Fraction becomes 1/3 when case number 1, when 1 is subtracted from numerator, कर दिया, and y remains same obviously। so देखो कितना आ गया 3x - 3 = y, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, राइट है। सेकंड पे आता है बच्चे, केस नंबर 2, it becomes 1/4 when added in denominator। तो इट मीन न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया जा रहा, और ये कितना हो जाता है 1/4, कितना हो जाता है देखो जरा, 4x = y + 8 एंड 4x y को इधर ले आओ और 8 वहीं रहने दो। सेकंड इक्वेशन इजी, इक्वेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद समझ लेना 50 क्या, अब तो इस स्टेज पर आकर जब हम एक्सरसाइज के लास्ट मोमेंट पर ही हैं, लास्ट स्टेज पर ही आ रहे हैं, तो इस पोजीशन पर सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करने के बाद तो इस 70-80% क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएगा, राइट है। सो यर्स स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट।
दो केसेस बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये मान के चलते हैं, लेट द नंबर ऑफ questions were there in the test, number of questions be x, right? And years scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong. So marks, I'm writing here, marks for correct answer is 3 and for incorrect wrong it is 1, right? Up had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks has been deducted for each incorrect answer, then years would have scored 50 marks. Okay, मतलब दोनों केसेस में यस की बात हो रही है, बट उन्होंने क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स चेंज किया, राइट? तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जगह हम एक काम करने वाले हैं, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर्स बोल देता हूं मैं सीधा, क्योंकि हम बाद में क्वेश्चंस को निकाल ही देंगे। करेक्ट क्वेश्चंस आंसर्स बी एक्स एंड करेक्ट इनकरेक्ट रॉन्ग आंसर्स बी वाई, ऐसा हम मान लेते हैं। इस पूरे केस में होगा, क्योंकि अटेम्प्ट तो एक बार ही करेगा, बट ये है कि बाद में वो प्रोसीजर चेंज हो रहा है मार्किंग का, वो बात अलग है। बट ये प्रोसीजर कभी चेंज नहीं होगा, जिसमें उसने करेक्ट कर दिए हैं। ये नहीं कि वो करेक्ट के लिए भी उसको छूट मिल जाएगी कि वो दोबारा टेस्ट कंडक्ट कराएगा, ये फिक्स है। उसके बाद जो प्रोसीजर ऑफ मार्किंग है वो चेंज हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, अगर मुझे करेक्ट आंसर्स की बात करता हूँ मैं, करेक्ट आंसर्स कितने हैं, एक्स थे मेरे पास, तो उसको मार्क्स कितने मिले करेक्ट के लिए, 3, तो 3x प्लस 1y, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 40। और सेकंड केस क्या कहता है, केस सेकंड ने बोला कि उसको 4 मार्क्स तो करेक्ट के लिए मिलेंगे, ओके, और ये माइनस भी होना है बच्चे, क्योंकि माइनस मार्किंग है, एंड 2y, सो इट विल बी 50। तो यहाँ से ये क्लियरिटी आ गई। अच्छा, जब बाद में आपका x और y निकलेगा तो उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मिलने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे ये बताओ जरा। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो x प्लस वाई होंगे ना, क्योंकि इनकरेक्ट आंसर्स प्लस करेक्ट आंसर, टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कितने हुए। बट सबसे पहले क्वेश्चंस बनाना बहुत जरूरी था यहाँ पर, तो उसके लिए हमने दो वेरिएबल्स को सपोज किया कि हमने करेक्ट आंसर्स मान लिए कि यस ने x दिए हैं और रॉन्ग उसने y दिए हैं, और फर्स्ट केस में करेक्ट के लिए 3 मार्क्स मिल रहे थे, रॉन्ग के लिए 1, तो हमने क्या करा 3x माइनस 1y कर दिया और 40 आ गया। फिर केस चेंज हुआ, उन्होंने कहा नहीं, एक काम करते हैं हम 4 करेक्ट के लिए देंगे, 2 इनकरेक्ट के लिए देंगे, तो वो 50 गेन कर रहा है। तो अब वो टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए होंगे ये उसने पूछा, राइट है। अब यहाँ पर आते हैं, जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा आपको समझना बहुत जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट सम भी है ये। सपोज ये ए और बी है, दो प्लेसेस है, समझना बात को, दो प्लेसेस ए बी, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का है, राइट। अब एक कार ऐसी है जो ए से स्टार्ट होती है, यहाँ से ये कार है जिसने ए से अपनी जर्नी स्टार्ट की, और एक दूसरी कार बी है, उसने बी से कर जर्नी स्टार्ट की, राइट है। अभी स्टोरी को समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दो प्लेसेस है ए एंड बी, बीच में जो डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 100 किलोमीटर। वन कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड सेकंड कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी पॉइंट। कहाँ किस डायरेक्शन में जा रही है अभी उसकी बात नहीं कर रहे। इफ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, राइट। अब यहाँ पर डायरेक्शंस की बात आएगी कि अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो, अब देखना बेटे केस क्या क्या बनेगा। तो मैं केस फर्स्ट ले लेता हूं यहाँ पर। केस फर्स्ट क्या कहता है, कार्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन इफ, मैंने इफ लगा दिया क्योंकि दो केसेस हैं। तो उस केस में होगा क्या, अगर ये कार एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, मैं एक फिगर को दोबारा बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो। मतलब एक कार आपने यहां से स्टार्ट किया, एक कार यहां से स्टार्ट हुई, और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओके। वो कहीं ना कहीं जाके मिल रही है, इसका मतलब है
कि सपोज वो यहाँ आकर कहीं मिलती है, फॉर एग्जाम्पल सी पर मिलती है, यहाँ मीटिंग पॉइंट है राइट। अगर ये यहाँ पर मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है बी कार की स्पीड कम रही होगी और ए कार की स्पीड ज्यादा रही होगी, तभी तो आएगी वो यहाँ पर। अगर बी पहले की स्पीड ज्यादा होगी तो कभी मिल ही नहीं सकती। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो लेट स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर, राइट है। अच्छा, कार बी जो है अपनी, उसकी स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ये हमने दो केसेस दे दिए और 100 किलोमीटर की जर्नी है, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। नाउ जब ये मिलती हैं कितने टाइम के बाद मिल रही है? 5 आवर्स, 5 घंटे लगे। बी को यहाँ तक पहुंचने में 5 घंटे लगे और ए को भी यहाँ तक पहुंचने में 5 आवर्स लगे। तो अगर दोनों को 5 आवर्स लगे हैं पहुंचने में, तो दोनों ने कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी है 5 घंटे में। 5 घंटे की जो इसकी डिस्टेंस है और 5 घंटे की जो इसकी डिस्टेंस है, उसको चेक करते हैं पहले क्या बनेगी वो, राइट। सो वी विल राइट हियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स बाय कार ए। अगर आप यहां देखें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? स्पीड इनटू टाइम, राइट है। स्पीड कितना हमने सपोज किया था? x किया था। टाइम कितना लगा? 5x। तो इसने 5x किलोमीटर मूव कर लिया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। इसका भी निकाल देते हैं, कार बी का। कार बी ने कितना किया होगा? फिर अगेन फॉर्मूला सेम, स्पीड इनटू टाइम। तो कितना आ गया? इसने कितना किया? 5 और y, क्योंकि उसकी स्पीड y है, ठीक। अच्छा, अब देखना बच्चे, यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो समझने वाला है। y ने जो x है, x का जो डिस्टेंस है, मतलब a का, सॉरी, जो a है उसका मूवमेंट क्या है? a यहां से मूव कर रहा है ऐसे, इतना, ये 5x है। जो b है वो इतना मूव कर रहा है, 5y। अगर इस 5x में से मैं 5y माइनस कर दूं तो मुझे कौन सी डिस्टेंस मिलेगी? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये 100 किलोमीटर है मेरे पास, राइट। तो मतलब AC माइनस BC, अगर मैं अकॉर्डिंग टू फिगर दूं कितना आएगा? AB। और AC कितना है मेरे लिए? 5x एंड 5y और कितना? 100। सो मैं अगर पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरे लिए ये फर्स्ट इक्वेशन जनरेट होगी, राइट है। इसमें कोई दो राय नहीं है समझने वाली ना समझने वाली। ये जरूर ध्यान रखना है कि जो A है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है AC तक, B ने सिर्फ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर की है क्योंकि मीटिंग करनी है। तो इट मीन्स कि ये माइनस ये डिस्टेंस इस इन दोनों की जो बीच की जो ओरिजिनल डिस्टेंस थी, प्रेजेंट इनिशियल डिस्टेंस, उसको इक्वल करेगी। अब सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में क्या हो रहा है? ये कार ऐसे मूव कर रही है, ये कार ऐसे मूव कर रही है, ये कहीं यहाँ कहीं मिल रहा है सपोज, ये रहा, क्योंकि अब ऑपोजिट डायरेक्शन की बात है। केस 2, अब ये कितने टाइम में मिलते हैं? यहाँ पर ये 1 आवर में मिल जा रहे हैं, मतलब 1 आवर में ये यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है। इसकी मैंने अभी क्या बताया था, इसका स्पीड कितना है? x और इसका y, ये तो सेम ही रहेंगे ना, कार सेम है। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? x, टाइम कितना है? 1 x किलोमीटर। देखो कितना इजी है। कार B का कितना है? y इंटू 1, कितना हो गया? y किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से इतना मूव कर ली, फिर यहाँ रुक गई, ये यहाँ से इतना ही रुक गई। अगर मैं दोनों के डिस्टेंस को इस बार ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा पूरा डिस्टेंस? क्योंकि वहां माइनस इसलिए करना पड़ गया क्योंकि उसने A और B वाला जो रेंज थी उसको क्रॉस किया है। अब मेरे लिए जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो ये थी, ये सेकंड है और ये मैंने फर्स्ट द्वारा लिख दिया है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये प्लस है माइनस से कैंसिल होगा है क्लियरली। तो कितना आ गया? 120। x कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर। x मैंने क्या सपोज किया था? कार A, स्पीड ऑफ कार A, स्पीड ऑफ कार B विल बी 40,
40 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन था। आई होप जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आई थिंक आपको खुद प्रैक्टिस करना चाहिए, उसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, क्योंकि अगर एरिया की बात कर रहा है एक बार ज़रूर ट्राई करो उसको। अगर नहीं आएगा देन यू कैन कमेंट ऑन माई चैनल, देन डेफिनेटली आई विल हेल्प यू देन, राइट। So tomorrow, definitely in the next video, we will see exercise 3.6, and that is very very important exercise, right? So kindly, nowadays, in this lockdown period, I hope you have a good enough time for practice. So I think we should all utilize our time. So thank you so much for watching this video.